السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ مریضوں کی تعداد 3,50,000 کو پار کر گئی ہے۔ اس جان لیوا بیماری کی لپیٹ میں آ کر 10,000 سے زائد لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے، جبکہ 1,87,000 سے زائد لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ ورلڈومیٹر کے ڈیٹا کے مطابق ملک میں کل کورونا مریضوں کی تعداد 3,54,161 ہو گئی ہے۔ یہ ڈیٹا حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ورلڈومیٹر کے مطابق کورونا سے اب تک ملک میں 11,921 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 1,87,000 سے زائد لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,54,000 سے زیادہ ہے۔ چین کے ساتھ سرحد پر ایک جھڑپ کے دوران ہندوستان کے 20 فوجی بشمول ایک کرنل ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ رات مشرقی لداخ میں گلوان وادی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ 45 برسوں کے دوران ایسا پہلا واقعہ ہے جس میں فوجیوں کی اموات ہوئی ہے۔ ہندوستان چین سرحد پر گزشتہ کئی ہفتوں سے حالات بہت کشیدہ ہیں اور دونوں نے وہاں اپنے ہزاروں اضافی فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ حالیہ عرصے کے دوران ایسا کم ہی دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان اور چین کے مابین اس طرح کی کوئی پرتشدد جھڑپ ہوئی ہو اور اس میں کوئی فوجی مارا گیا ہو۔ ہندوستانی فوج کے ترجمان نے ابتدا میں کہا تھا کہ گزشتہ شب ایک پرتشدد جھڑپ کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب چین نے ہندوستان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی فورسز نے سرحد عبور کرتے ہوئے چینی فوجیوں پر حملہ کیا تھا۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک کی سرحدیں محفوظ ہیں اور انہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیرالہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مشرقی لداخ کے گلوان وادی میں ہند چین فوجیوں کے درمیان پرتشدد تصادم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے جوان بھی مارے گئے۔ میں ان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان کی سرحدوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ سیاسی رضامندی اور فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے ہر دن مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ عدالت نے یہ تبصرہ پنجاب کے ایک منشیات کے اسمگلر کے پیرول میں توسیع کے موقع پر کیا۔ عدالت بالا ملزم جگجیت چہل کی درخواست سماعت کر رہی تھی، جنہوں نے اپنے پیرول میں توسیع کی خواہش کی ہے۔ جسٹس آر ایف نریمن، جسٹس نوین سنہا اور جسٹس بی آر گوئی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ صورتحال ایسی ہے کہ جیلوں میں زیادہ قیدیوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ چند ملزمین کو ضمانت پر یا پھر پیرول پر رہا چھوڑا گیا ہے۔ بینچ نے پنجاب حکومت کے وکیل سے کہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں کووڈ کی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ملزمین کو جیلوں سے باہر رکھنا ہی بہتر ہے۔ جیٹ ایندھن کی قیمت میں 16% کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 47 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 93 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی مسلسل 10ویں دن اضافہ کیا گیا ہے۔ دہلی میں پیٹرول کی قیمت بڑھ کر فی لیٹر 76 روپے 73 پیسے اور ڈیزل کی قیمت بڑھ کر 76 روپے 26 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ 10 دنوں کے دوران پیٹرول کی قیمت میں جملہ 5 روپے 47 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 8 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم یہ قیمتیں مختلف ریاستوں میں ویٹ اور مقامی سیل ٹیکس کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے، جبکہ ملک کورونا لاک ڈاؤن سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور انہوں نے زندگی اور روزگار دونوں پر توجہ مرکوز کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ٹیسٹنگ پر توجہ دینے کے لیے صحت انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، دوسری طرف معاشی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھنے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ وبا کے خلاف نمٹنا باہمی وفاقیت کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں مرکز اور ریاستیں باہم کام کر رہی ہے۔ 21 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف منسٹروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کے ساتھ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کو اس بات پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ابھی خطرہ کم نہیں ہوا ہے اور مہلک وائرس کے خلاف مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان لاک 1 کے 2 ہفتے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران تجربات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ان تجربات کے پیش نظر مستقبل کے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے چیف منسٹروں سے کہا کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وائرس کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور مزید محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی معیشت پر بھی نظر رکھی جائے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے فیصلے کو واپس لینے کا وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا۔ صدر کانگریس نے وزیر اعظم کو موسومہ ایک مکتوب میں لکھا کہ ایک ایسے وقت جبکہ ملک کورونا وائرس کی وبا کے بحران کا سامنا کر رہا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا مکمل طور پر بے حسی اور غلط تجویز ہے۔ اپنے مکتوب میں سونیا گاندھی نے لکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر گزشتہ ہفتے خام تیل کی قیمت میں 9% کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ حکومت کچھ اور نہیں عوام سے اس وقت منافع خوری کر رہی ہے جب وہ معاشی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔
महाराष्ट्र में हुक्मरान जमात शिवसेना ने अपनी हलीफ जमात कांग्रेस को पुरानी चरचराती हुई चारपाई करार दिया। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में ये रिमार्क सोनिया गांधी की ज़ेर क़यादत पार्टी के हुक्मरान इत्तेहाद में इसे नाकाफी हिस्सेदारी पर एतराज़ के जवाब में किया। तमाम शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के हुक्मरान इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी को किसी खतरे से इनकार कर दिया। इसका जवाब देते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस बाला साहब थोराट ने कहा कि शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना का इदारिया गलत इत्तलात पर मबनी है। सामना के इदारिये में कहा गया है कि मुख्तलिफ नज़रियाती वाले एक इत्तेहाद में दाखिली खलफशार नागुज़ीर हैं। कांग्रेस एक कदीम और तारीखी विरसे की हामिल है, जहां सरगोशियों में खलफशार का इजहार बहुत ज़्यादा होता है। शिवसेना ने लिखा कि कांग्रेस एक ऐसी कदीम चारपाई है जो अक्सर चिड़चिड़ाती रहती है। गुज़िश्ता रोज एक अहम फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि तबलीगी जमात से वाबस्ता 31 गैर मुल्कियों के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत कायम मुकदमा ख़त्म करके इन्हें जल्द अज जल्द इनके मुल्क रवाना किया जाए, क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी बर्दाश्त कर चुके हैं। वापस अपने मुल्क जाना इनका हक है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आईन हिंद के आर्टिकल 21 के तहत इनकी मजीद कैद कोरोना वबा में इन्हें हासिल आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि मेडिकल इमरजेंसी में किसी को इस तरह जेल में नहीं रखा जा सकता, लिहाजा इन्हें जल्द अज जल्द इनके ममालिक वापस भेज देना चाहिए। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाले मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज राजस्थान के कोटा शहर के शाहीनबाग की ख्वातीन ने कलेक्ट्रेट के बाहर मुजाहरा किया। ख्वातीन ने दिल्ली और दीगर मुकामात पर गिरफ्तार किए गए तलबा, नौजवानों और समाजी कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। इस दौरान कोटा शाहीनबाग के मुंतजमीन में मरकजी किरदार अदा करने वाली शिफा खालिद की सरबराही में ADM को कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के चेयरमैन के नाम एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस बारे में शिफा खालिद ने बताया कि मेमोरेंडम में शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल होने की पादाश में गिरफ्तार किए गए तलबा, नौजवान और समाजी कारकुनान समेत जामे की रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर जो हामिला हैं, इनको रिहा करने का मुतालबा किया गया है। शिफा खालिद का कहना था कि यह निहायत अफसोसनाक है कि एक मुहक्किक तालिबा जो हामिला भी है, इसे आइन के दिफा के लिए किए गए मुजाहरे में शामिल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। कोटा शाहीनबाग की हम तमाम ख्वातीन सफूरा जरगर की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हुकूमत से इनकी जल्द रिहाई की अपील करते हैं। दहली फसादात को लेकर दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की जानिब से की गई जांच रोज़े अव्वल से ही तनकीद का निशाना रही है। लोगों का कहना है कि जांच में तबके खास के लोगों को निशाना बनाकर पूरी जांच इनके ही इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की गई है और जिनके घर जलें, जिनकी जानें गईं और जिनके मजहबी मुकामात को नजर आतिश किया गया, इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को ज़्यादा गिरफ्तार किया गया, ज़्यादा सख्त मुकदमात में जेल भेजा गया। एक हिंदी रोजनामा में शायद सियासी तज्जिया निगार अवधेश कुमार के मजमून के मुताबिक अब तक कुल 2650 गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, जिनमें से 550 हिंदू हैं। इस तरह 1600 मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मौजू पर बात करते हुए मारूफ वकील और कॉलम निगार एडवोकेट ए रहमान ने कहा कि ये जो कुछ भी इस वक्त पुलिस और क्राइम ब्रांच की जानिब से किया जा रहा है, इसकी पेशन गोई उन्होंने इसी वक्त अपने एक मजमून में कर दी थी जब ये फसादात हुए थे। ए रहमान के मुताबिक जांच का पूरा चार्ट वजारत दाखिला की जानिब से तैयार करके दिया हुआ है, जिससे अफसरान को हिदायत जारी की गई थी कि इनको किस तरह से किन लोगों और किन किन मुकदमात में जेल रसीद करना है। इसमें मुसलमानों को ही मुजरिमाना साजिशों में दिखाने की बात अहम है और अब जो भी चार्जशीट दाखिल की जा रही है सब इसी साजिश का एक हिस्सा है, जिसमें वजारत और पुलिस अफसरान शामिल है। इस मौजू पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा ने बताया कि बुनियादी बात यह है कि पुलिस की ज़्यादातर कार्रवाई मुसलमानों के ही इर्द गिर्द घूम रही है और ये जो कुछ भी हो रहा है सब वजारत दाखिला के इशारे पर हो रहा है। हालत यह है कि कत्ल भी मुसलमान ज़्यादा हुए और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी ज़्यादातर मुसलमान ही किए गए। उत्तर प्रदेश की योगी काबीना मुहाजिर मजदूरों व दीगर रियासतों में कामकाज करने वालों के लिए कमीशन की तश्कील का फैसला किया है। सेवा आयोजन और रोजगार कमीशन को लोक भवन में हुई मीटिंग में मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने को भी हुकूमत फरोग देगी। रोड सेफ्टी के लिए हुकूमत ने सख्ती बढ़ा दी है। कानून शक्नी करने वालों को दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। मिर्जापुर में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मुफ्त जमीन दिए जाने का फैसला भी किया गया है। योगी आदित्यनाथ की काबीना ने मंगल को यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना और लॉकडाउन के सबब कैद व बंद की जिंदगी गुजारने वाले 1640 गैर मुल्की जमातों के जमात उल-मुस्लिमीन की जानिब से कानूनी जद्दोजहद जारी है। ईरान से आए 15 तबलीगी जमातों की रिहाई के लिए भी मजबूती के साथ कानूनी चाराजोई की जा रही है और इसके लिए सदर जमात उल-मुस्लिमीन मौलाना सैयद अरशद मदनी ने ईरानी सफ़ीर को एक मकतूब भी रवाना किया और मुत्तहिदा जद्दोजहद की गुजारिश की। चुनांचे गुज़िश्ता एक महीने से मुत्तहिदा जद्दोजहद जारी है। नेज़ उम्मीद है कि जल्द ही ईरानी जमाती भी रिहा होकर अपने वतन वापस लौट सकेंगे।
आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी अरब रवां साल हज महदूद करने या इसे मनसूख करने का ऐलान कर सकता है, जो जदीद दौर में पहली मरतबा होगा। दूसरी जानिब मुसलमान ममालिक रियाज की जानिब से ताहाल कोई फैसला सामने न आने पर दबाव डाल रहे हैं कि बताया जाए कि क्या सालाना इबादत शेड्यूल के मुताबिक जुलाई के आखिर में होगी। सऊदी हज हुक्काम से राब्ते में रहने वाले एशियाई ओहदेदार ने बताया कि मामला हज की मुख्तसर अदायगी और बिल्कुल भी अदा न करने के दरमियान लटक रहा है। दूसरी जानिब एक सऊदी ओहदेदार ने बताया कि इस सिलसिले में जल्द फैसला करके इसका ऐलान कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया और मलेशिया रियाद की जानिब से कोई फैसला सामने न आने पर आज़मीन हज को रवां साल ना भेजने का ऐलान कर चुके हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,267 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पहले से इस मोहलिक वबा का शिकार 41 मरीज फौत हो गए। सऊदी वजारत सेहत ने मंगल को बताया कि मुमलिकत में कोरोना वायरस के कुल केसों की तादाद 1,36,315 हो गई है। इनमें 1,052 मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होकर फौत हो चुके हैं। हिंद चीन सरहदी तनाव में हुए इजाफे में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों में तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष बाबू भी शामिल हैं, जो कि हिंद चीन सरहद पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। सूर्यापेट में इनके अफराद खानदान को हिंदुस्तानी फौज और महकमा दिफा की जानिब से कर्नल बी संतोष की शहादत की इत्तला दी गई। वादी गुलवान में सरहदी कशीदगी में शहीद बी संतोष बाबू की वालिदा ने इस बात की तौसीफ करते हुए कहा कि इनके फर्जंद की जवानी में ही मौत का इन्हें शदीद सदमा है, लेकिन वहीं वो इस बात से खुश हैं इनके फर्जंद ने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है। शहीद संतोष की वालिदा मंजुला ने बताया कि इनकी बहू और एक पोतरे के अलावा एक पोतरी दिल्ली में मुकीम है। मंजुला ने बताया कि शहीद फौजी की अहलिया के अलावा इनकी 9 साला दुख्तर अभिगना और 4 साला फर्जंद अनिरुद्ध मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इनके फर्जंद का हैदराबाद तबादला हो चुका था, लेकिन मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के सबब वो अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा नहीं ले पाए थे। शहर हैदराबाद के मारूफ गोकुल चाट भंडार के मालिक को कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और इस खबर ने गोकुल चाट के ग्राहकों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। गोकुल चाट के 74 साला मालिक को कोरोना वायरस की तस्दीक के साथ ही यह खबर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ज़राए इब्लाग इदारों में गश्त करने लगे। लॉकडाउन के दौरान गोकुल चाट मुकम्मल तौर पर बंद रहा, लेकिन 16 मई से गोकुल चाट में ग्राहकों की आमदरफ्त जारी है। गुज़िश्ता दिन गोकुल चाट के मालिक को कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद इलाके में इनके मकान के इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। गोकुल चाट इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिर मालिक गोकुल चाट काफ़ी अरसे से होटल नहीं आ रहे थे और लॉकडाउन के बाद से वो मुकम्मल तौर पर घर पर ही है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद ऐसा लग रहा है कि गोकुल चाट कोठी में खिदमत अंजाम देने वाले एक रिश्तेदार के सबब गोकुल चाट के मालिक में वायरस मुंतकिल हुआ है। शहर में चाट खाने वाले अफराद की पहली पसंद तस्वुर किए जाने वाले गोकुल चाट के मालिक को कोरोना की तौसीक के बाद कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर अलग थलग करने के इक़दाम किए गए हैं। बताया जाता है कि गोकुल चाट के मालिक के अलावा 20 दीगर अफराद खानदान को भी क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में मंगल को एक दिन में कोरोना के 213 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 4 अमवात की भी इत्तला है। अब तक रियासत में जुमला 5,406 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 151 हो गई है। खानगी हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज में कोरोना टेस्ट और इलाज के लिए हुकूमत की मुकर्ररा शहरों की खानगी हॉस्पिटल से मुखालिफत की जा रही है। उनका मानना है कि हुकूमत ने जिन शहरों का तयन किया है वो नाकाबिल अमल है। हुकूमत को फैसले से कबल खानगी हॉस्पिटल से मुशावरत करनी चाहिए थी। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स नुमाइंदों का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र से मुलाकात करके शहरों में नजरसानी की दरख्वास्त की जाए। हॉस्पिटल्स का मानना है कि कोरोना मरीज का बेहतर इलाज हुकूमत की तयशुदा शहरों में मुमकिन नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दही इलाकों की तरक्की के लिए आइंदा 4 साल के मंसूबे को खतियत देने और डिस्ट्रिक्ट कार्ड तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने आज जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के ओहदेदारों के साथ प्रगति भवन में इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़रा हुकूमत के खुसूसी मुशीर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और मुख्तलिफ आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि दही और शहरी इलाकों की तरक्की से ही रियासत की मजमूई तरक्की मुमकिन है। बीटेक और डिग्री सेमेस्टर्स के इम्तिहानात मुनक़िद किए बगैर ही तलबा को प्रमोट करने की हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के क़ायद वेंकट ने यह दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई और इस दौरान बीटेक इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली JNTU ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें अदालत को बताया गया कि हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने तक इम्तिहानात को मुनक़िद नहीं किया जाएगा। जबकि दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ख्वाहिश की कि 10वीं जमात के तलबा को जिस तरह प्रमोट कर दिया गया, इसी तर्ज पर डिग्री और बीटेक के तलबा को भी प्रमोट कर दिया जाए। अदालत ने दोनों फरीकीन के मौक़िफ़ को जानने के बाद इस केस की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने चीन के हमले में गुलवान वादी में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए शहीद फौजियों के अरकान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया।
اسودین اویسی نے کہا کہ شہید فوجیوں کی تعداد میں مستقبل میں شاید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے فوجیوں نے جو قربانی دی ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ ان کے مرہون منت رہیں گے۔ یہ ناقابل تلافی نقصان اور جان کا حادثہ ہے۔ گزشتہ 40 برس کے دوران شاید ہی ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ ان حالات میں دفتر وزیر اعظم ہند کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہادر بتانا چھوڑتے ہوئے حقائق کو قوم کے سامنے لائیں۔ صدر مجلس نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم ہندوستانی سرحدوں کے دفاع میں اپنی ناکامی کو قبول کرتے ہوئے شفاف طریقے سے حالات کو پیش کریں گے۔ اویسی نے کہا کہ ہندوستانی سرحدوں اور اس کے علاقوں پر قبضے کے باوجود وزیر اعظم نے چین سے بات چیت کو جاری رکھا ہے۔ کیا وہ اپنی اس غلطی کو قبول کریں گے؟ وزیر اعظم کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ بیرونی حملوں سے اپنے ملک کی حفاظت کریں۔